सवालों का हिसाब है जिंदगी, कुछ ज़रूरतें पूरी, कुछ ख्वाहिशें अधूरी, बस इन्हीं सवालों का जवाब है जिंदगी। आध्यात्म हमारे जीवन के इन्हीं सवालों का जवाब देता है। Celebrating the will to live and live well indeed, I welcome you all to the session 3. Life is a combination of body, senses, mind, and the reincarnating soul. Ayurveda and yoga are indeed the most sacred sciences of life. To elaborate on the same, I would now like to hand over the proceedings to our moderators for session 3, Dr. Ritu Tiwari ma'am and Dr. Vandana Avasthi ma'am. I feel elated to welcome Dr. Amarjeet Yadav sir to join the dignitaries on the dais. And Dr. Yogeshwar Chippa sir to join the speakers on the dais. Give a huge round of applause for them. So a very quick question to the audience, because यहाँ सब they feel lousy and they are sleepy. Do you think that the gold, silver, dollar, rupees should be considered as a real wealth? Yeah, exactly. The answer is no. The correct answer is it's your health, which is the real wealth. So the keys for health are diet, ahara, lifestyle, vihara, and mental makeup, which we call vichara. So here I graciously invite Dr. Vidya Sundaresan. She's a woman of virtue and simplicity. And we are so lucky that she found a way to be with us today despite of distance and her hectic schedules. So she's MD, MPH, FACP, FIDSA, FAMWA, and she's professor and chief in Infectious Disease Department, Southern Illinois University School of Medicine. She's program director in Infectious Disease Fellowship, medical advisor, Sangamon County Department of Public Health, governor is ACP Illinois South Chapter. So ma'am, please welcome and share your thoughts with us. Podium is all yours. Namaskar and good afternoon. I am extremely grateful for this opportunity to be here and talk about yoga and Ayurveda, and I was being asked to talk about perceptions of yoga and Ayurveda from the United States of America. So I will be reviewing a few things and just feel the energy here. So thank you all. I'll start with the presentation as soon as it loads up. So in the next 8 minutes or so, I'm going to talk about some facts, some terms that we use in the definition of health, and the definition of health as a continuum. I'm also going to talk about some proven benefits of yoga and Ayurveda in studies which are already published. And then I'm going to talk about perceived gaps with yoga and Ayurveda, especially in the Western world. And lastly, I'm an infectious diseases physician, so right after COVID, we are seeing a lot of patients with post-COVID syndromes. So exactly how is yoga, mindfulness, and the practice of some of the integrated medical practices, how do they help our patients with post-COVID syndromes and other issues in the post-COVID era? So I'll start with the WHO definition. This was in fact formed as part of their preamble in their constitution in 1946. Can you imagine? The concept of holistic health has been defined all the way from 1946. And WHO says health is a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease and infirmity. So सिर्फ बीमारी ना होना health नहीं होता.
physical, mental, social well-being is defined as health per WHO. Fast forward a little bit, and now we are talking about holistic health. And what's the difference between holistic health and what WHO says? And here, in this case, we are also adding emotional and maybe even spiritual, maybe even financial health. So we're also taking into account the space we're in. So how is one individual affected and how is their health impacted by the environment? What's going on? But it's still the health of this individual, their health in perspective with the community and all the parts, extending that definition a little bit more as holistic. And then lastly, now we are talking about a concept called One Health. And very apt for our theme for G20, Youth 20, Vasudhaiva Kutumbakam. Here, One Health, a collaborative, multi-sectorial, transdisciplinary approach, working at the local, regional, national, and global levels, designing and implementing programs, policies really implement what happens to people's health. So very important, policy, legislation, and research to achieve better public health outcomes and achieving optimal health outcomes by recognizing a shared environment. So not only at this time are we thinking about the health of individuals, but also the impact of climate change, the impact of what happens to other living beings, plants, animals. So all that is also taken into account in this concept, in this continuum of One Health. So when I was asked to give this talk, I was looking at resources, and NIH is a credible resource. National Institute of Health is a credible resource, and they have a National Center for Complementary and Integrative Health. So yoga is described under that category. And this kind of information, which I think is very nice, it's available to public in general, and they also break it down to the level of knowledge that the receptor or the audience needs to be catered to. So if it's a physician or a healthcare provider that's seeking this knowledge, they have a separate link for that as well. So this is what they say on their website. They recognize yoga, they emphasize that yoga is not just meditation. A lot of times in the Western world, yoga is always meditation or hot rooms or sauna. That's the perception of yoga. But they say that yoga, the triad of yoga, which is postures, asanas, breathing techniques, pranayam, and meditation, dhyana. So they do recognize that. And they also recognize that the studies that are being published in yoga don't take into account the differences, because it really depends on the difficulty. There are different types of yogic practices. Intensity is different. So they don't really take into account. So the studies can be a little flawed. So they do acknowledge that. So proven benefits of yoga, general well-being. There's definitely a lot of studies with over 1,000 subjects that have been studied all the way from 2012 to 2021. A lot of studies that do say that with yoga there's relief of stress, supporting good habits. A lot of times with the community of yoga, people feel that they're automatically eating better because of that circle of good habits a group that helps them stay on target and follow these good practices. Improving mental and emotional health, and that way resilience is improved and general mental well-being is improved. Sleep. Sleep, they have specifically studied patients with cancer, women, patients with osteoarthritis, knee pain. So in that groups particularly, sleep has been shown to be improved. Balance, they published 15 studies. 11 out of 15 show that balance in elderly people improved. Low back pain, neck pain. In fact, this made it to the guidelines for American College of Physicians. They recommend yoga as a non-drug best method for back pain. So that has been recognized. And tension headaches and osteoarthritis, there's a lot of benefit there as well. Weight loss, the data with weight loss, if it is done consistently,
And if somebody is enrolled for maybe a residential course, 1 month, 2 months, in those situations, the result is better. Home practices, and depending on the component of yoga that is employed, the weight loss results can vary, but it is gradual and moderate amount of weight loss that has been associated with yoga in the studies that have been published. Smoking cessation, with one session alone, the craving for smoking has been known to come down. So that's another benefit. Anxiety, depression, menopausal symptoms, chronic diseases like COPD, HIV, asthma, multiple sclerosis, fatigue is always, that also comes down with yoga. And in pregnancy, you have to be careful. With pregnant women, they have to be counseled. They can't take too much heat, so hot yoga should be avoided. They should avoid getting dehydrated. They should not be doing exercises on their back. So all this has to be told to them. And then with children, American Academy of Pediatrics recommends this for reduction of stress in children as well, and heart disease as well. There's studies with that as well, that there's proven benefits. All these studies, multiple studies, and you'll see 14, 15 review articles where they're doing meta-analysis and proving the benefits. The problem is the sample size is not very large, and the statistical methodologies too. In these studies, one of the criticism has been that it's not been the best. So those two things, I think we definitely have scope to improve. Next, I'm going to switch gear to some publications from New York Times and Harvard Health. They have a very large readership, and they, in fact, constantly have articles, yoga for everyone, yoga to make you strong. So this is also publications which people really read on a regular basis to improve their knowledge about yoga. CDC, we all hear the name CDC, particularly with COVID. They have this initiative where for children aged 9 to 13, they have this online platform for just tips on healthy living, and teachers have this toolkit to also incorporate yoga in school with the benefits which are yet to be studied. The preliminary studies show a lot of benefit. Switching gears now to Ayurveda. With Ayurveda, again, I'm going back and referencing the NIH website here. They did talk about systematic reviews, and they did talk about randomized controlled trials as well. With Ayurveda, you can see the first question that they asked there is Ayurvedic medicine safe? And then they do acknowledge this as an ancient, one of the oldest medicine systems from India. So they do acknowledge that. So only 44 papers for randomized clinical trials, and 246 for systemic reviews. So perceptions, I'm just going to take about half a minute to talk about this. For yoga, people want to learn from that authentic way. Sometimes they feel like learning from an app may not be best. A lot of times you see even Facebook messages popping up, yoga for 7 minutes and things like that. A lot of people download that. Without a qualified instructor, that may not be the best thing to do. Different studies show that female patients are mainly enrolled, white patients with higher level of education, high-income patients were the ones in the studies. A lot of times yoga is associated with Hinduism, so that's another perception. Ayurveda, safety concerns, because FDA has not really approved a lot of the things with Ayurvedic medications. And for me as a physician, drug-drug interactions, I always ask about what herbal medications are you taking. So drug-drug interactions become important, and this should be in the curriculum for schools. So holistic medicine, again, these two are part of that. With COVID, again, neurosciences, you can see those images where the amygdala fires less when people are meditating. So I'll end with One Health. Purnamadam Purnamidep Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate.
a quote from Sanskrit which tells us we are a part of the whole. So here, the concept of One Health, coming back to that, we are a part of the whole, and we cannot be looked at in isolation. Thank you very much. Thank you, ma'am, enlightening your lecture. Now I would like to invite Dr. P. Ravi Shankar. His topic is health and investment. Sir, please. Hello, namaskar, good afternoon. I think we have a small audience, many of you have escaped, okay? So maybe that makes our job either easier or more difficult. I don't have the skills of Rakesh sir. Of course, you saw the ice breaking yesterday. So what I'll talk about, can we start the slides? Okay. Just wait for my slides, yeah? Let's see it works. I have something for you. Let's see whether it works. So I am Dr. Ravi Shankar. So that's some of the information about me. I work at the IMU Center for Education in Kuala Lumpur. I'm from India, but I've been out of India now for quite some time, Nepal, Caribbean, and now in Malaysia. So health is a priceless wealth. I think many of you are now young. You're in the pride of health. So health is something we realize only when we begin to lose it. So invest while you can. So open your mobiles. I think one of your favorite activities. You can open your mobile phones, take out your mobiles. I hope there is a wireless connection. Let's see if it works. If it doesn't work, of course, we'll move forward, doesn't matter. So open slido.com, yeah? Go to your web browser, open slido.com, and put in the number. Okay, so there's a code here. So enter the code 316-3430. Okay, open Slido, phone nikaliye, Slido open. Okay, then put in that code 3163430. Okay, let me move forward. So I assume you must all be there. So describe yourself. Yeah, we have a big audience. Maybe the gender, sir said no gender yesterday, but maybe today we can come back to gender. Okay, where you're from, your occupation, and your self-declared health status. So some things about yourself, where you're from, what you do, many of you must be students, and whether you're healthy. In your opinion, are you healthy or are you not healthy? Okay? Sorry, I think it's not working. Okay. Okay, doesn't matter. I think, yeah, maybe some issues. Okay. So, no, I think it doesn't work. Okay, but we'll move forward. So what we'll do is, this has already been covered. What exactly is health? Health is not merely the absence of disease or infirmity. So no problem. Yeah, so this is the WHO definition, which someone has already told you. Maybe some other time we can use Slido. Maybe due to some reason did not work. If it works, it's very nice. So investing in health at the national and international state level. So how much should a state invest on health? Anyone, what percent of the GDP should a state invest on health? Any country, what percent of GDP should be invested on health? Ideally, what is recommended? Anyone? 10%, very good, but that's not much more than what many states would do. At least what percent?
At least 5%. Yeah, the general recommendation is at least 5% of the GDP should be invested on health. So which country spends the highest per capita on healthcare? I think someone can answer. I think you know this answer. Which country spends the maximum amount per citizen on healthcare? Any ideas? Germany, I think, is second or third, yes? No. No. Canada, no. It doesn't have that good health status. It spends the most, but the most famous country, the United States of America, maximum amount of money is spent by the United States. They spend about $16,000 every year per citizen on healthcare. Germany is about 9,000 or something like that. Yeah? So investing in health, so what are the things we should focus on? This is something when you become leaders tomorrow. Yesterday, I think Rakesh sir made you chief minister for one day. We hope you'll be chief minister for a few years, yeah, moving forward. So always female education is very important. Education is important for everyone, but especially for the female child, very important. Transportation, so that you can easily access health services. Primary health care. Primary health care, I think, is Prathamik, yeah? Prathamik Arogya. Whatever you provide in the primary health care center, very important, because for the least amount of money, you can get the maximum amount of benefit. Health at a personal level, some challenges will be non-communicable diseases. Do you know some non-communicable disease? Diabetes, very common. Cancer, heart disease. These days, diabetes has become very common, yeah? Especially in India. I think becoming the diabetes capital, not something which is good. And many people now have a feeling that they have arrived in life only if you have diabetes. Yeah, aapko diabetes hai? Oh, very nice. Okay, you have arrived somewhere. Yeah, that kind of feeling has come. So invest in health, nutrition, yoga, Ayurveda, already covered. Yeah, let me talk about some things which we did not cover much. One problem which has happened is we have always been in search of light. Yeah, we started by lighting the lamp. Good to be in search of light. But paradoxically, there is something we are now missing. We do not have darkness. Yeah, in our life, we do not have enough darkness. Darkness has its own, darkness is very important. Light and darkness are two facets of two opposites. In darkness, many important things happen in the body. Many important hormones are produced, sleep, restfulness, many things happen in darkness. So darkness is now something we are missing because artificial lighting is everywhere. And we have been, we as human beings, millions of years of evolution. Over so much of time we have evolved. And over the last 150 years, we have seen so much change. Yeah, before, maybe the last 3,000 years, we did not see much change. The last 150 years, we have seen so much change, and the human body is struggling to keep up. So much change is happening. We are struggling to keep up with the change. Sleep. Yeah, how many of you think you're getting enough sleep? Maybe you can put up your hands. All those who think you're getting enough sleep, yeah, can you put up your hands? Okay, even among you, the young youth, there's a challenge of getting enough sleep. So what happens as you age? Naturally, our requirement for sleep will decrease. Okay, so what do you think? This Slido won't work. Are you getting enough exercise? All those who think they are getting enough daily exercise, put up their hands. Okay, we have some people, only 2, 3, 4, 5, okay, any more? 7, 8. Okay, we have only, what about the others? So many? You think you're not getting enough exercise? Okay, so again, that's a problem, no? Already covered, yoga and meditation, Ayurveda, let me not go into that. Again, we are running short of time. Okay, I think some issues. So how to stay healthy
especially as healthcare professionals. Just think about it. Some of your doctors, others are medical students. You have the challenges. I think someone asked that question. You have so much challenge, irregular meals, stress, night duties. There are so many things which can have a bad effect on your health. How to stay healthy when you have all these challenges? And as if a doctor is not healthy, how can you take care of others? Yeah, that's a very important, a question which you have to think about. If you yourself are not healthy, how can you take care of other sick persons? Yeah? So Guide to Healthy Living, something I believe in. I do not always succeed in following this. Life is too stressful, too demanding. Stay in tune with nature. Do what you love. Again, this has been said. Someone talked about sports. When your love becomes your occupation, you're doubly blessed. Be passionate about something. There's a lot of passion in Bollywood, of course, we know that, yeah. Bollywood is a very passionate place. So I am from the city of Bollywood, from Mumbai. Yeah, that's where my roots are. So of course, there's a lot of passion in Bollywood. Exercise outdoors, that's what, again, we had a discussion on that. Vaccination, preventive checkup, get the vaccines. Yeah, remember with COVID, there has been so much negative reports about vaccination, but vaccination is something which has stopped COVID, yeah? Something which prevented the world from getting drowned in COVID. One of the important things was our vaccine. We developed them so quickly. Preventive checkups is important. Be aware of what you eat. What has happened is now we have become rich, or we have become more and more prosperous. Things which we could eat only during festivals, all the sweet meats and all the nice foods, now we can eat them every day, or at least twice a week, thrice a week. So now is a time for self-control. How do you be aware? I'm not saying that don't eat, but maybe try and restrict. This is something I also don't succeed, yeah? I succeed sometimes, but not always. Stimulate your mind. And develop a sense of contentment with life. Okay. So that's mainly what I wanted to say. Some things, if any of you want, I think I will share my slides. They're with the organizers. You want to read something more, everyone can read, medical students, even other students, something more about what I said. Look at these. Okay, finish. Okay, thank you so much for listening. Sorry the Slido did not work, but maybe some other time we'll come out prepared with Slido, yeah? Maybe there are some technical issues. And thanks for Rakesh sir again. Thank you. Thank you, Dr. Shankar, for a wonderful lecture. Now, next topic is Yoga and Wellbeing. I would like to invite for this topic Dr. Amarjeet Yadav from Lucknow University, Department of Yoga and Naturopathy. Sir, please. नमस्कार। भारत के अमृत महोत्सव के काल में भारत सरकार के द्वारा G20 एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। उसके क्रम में ऐतिहासिक किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी और सरकार के खेल और युवा मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में मैं डॉक्टर अमरजीत यादव आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलो कोई बात नहीं, मैं एक्सटेम्पोर बोल दूंगा, कोई मुझे दिक्कत नहीं। और
सबसे महत्वपूर्ण मैं स्वागत करना चाहता हूँ युवाओं का। मैं समझता हूँ इस कार्यक्रम के ये स्पेशल गेस्ट हैं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। स्लाइड में कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई बात नहीं, मैं एक्सटेम्पोर बोलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आज मैं आप लोगों के समक्ष योग के द्वारा आदर्श जीवन शैली कैसे स्थापित कर सकते हैं उसके बारे में मुझे 10 मिनट दिया गया है। 10 मिनट में मैं अपनी बात रखूँगा और हिंदी में ही बोलना पसंद करूँगा। जैसा देश वैसा भेष, सर ने पहले बताया। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, भारतवर्ष विचित्र संभावनाओं वाला देश है। इस देश में बहुत ही प्राचीन समय से ज्ञान, विज्ञान, आयुर्वेद, चिकित्सा, स्वास्थ्य, जीव जगत, मोक्ष, माया, इन सारे विषयों में इस देश के मनुष्यों ने बहुत ही गहरा चिंतन और मनन किया है। उस क्रम में योग भारतवर्ष की पुरातन एक विषय है जो मनुष्य के जीवन के हर एक पक्ष को स्पर्श करती है। मनुष्य का शारीरिक पक्ष हो या मानसिक पक्ष हो या सामाजिक पक्ष हो या आध्यात्मिक पक्ष हो, फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, सोशल लेवल पे और स्पिरिचुअल लेवल पे योग एक ऐसा विषय है जो सारे पक्ष को स्पर्श करता है। थोड़ा सा मैं योग का, लोग योगा कर रहे हैं, ये प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं है। इसका वास्तविक जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, योग है। जैसे राम को रामा नहीं बोल सकते ना, तो योग जो है ये संस्कृत, मैं आप लोगों को कोई क्लास नहीं ले रहा हूँ, छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ। योग देखिए यूज धातु से बना है संस्कृत का। हाँ, इसका मतलब ये होता है कि जोड़ना। यहाँ पे जोड़ने का मतलब है कि आत्मा से परमात्मा को जोड़ना, शिव से शक्ति को जोड़ना, मनुष्य का शरीर और मन, उसमें तमाम तरह के डायमेंशन है, उनमें कोऑर्डिनेशन स्थापित करना। तो योग के अलग अलग स्कूल्स हैं। हमारी भारतीय परंपरा में योग के अलग अलग तरह के स्कूल्स हैं और जो प्राचीन काल के योग हैं वो 47-48 तरह के योग हैं और आजकल तो लोगों ने हज़ारों तरह का बना दिया है। तो उसके कुछ मैं डेफिनेशन आपको बताता हूँ। जो अष्टांग योग है उसके फाउंडर है महर्षि पतंजलि। उन्होंने योग को बताया कि योग का मतलब ये होता है कि चित्त वृत्तियों का निरोध करना योग, और चित्त का मतलब होता है कि मन, बुद्धि, अहंकार तीनों को मिला के चित्त बनता है और इसका जब हम निरोध कर लेते हैं तो आप समझो आपके साथ योग हो रहा है। उसके साथ उन्होंने अपनी तमाम तरह की प्रैक्टिसेस बताए। अब गीता में योग का, अब स्लाइड आप छोड़ दो, हम बोल देंगे इसे। गीता में योग का अपना एक अर्थ बताया है और युवाओं से ज़्यादा संबंधित है, ये सबसे संबंधित है। उसमें कहा कि अपने कर्म में कुशलता ले आना योग है। आप किसी भी फील्ड में हो, विद्यार्थी हो या शिक्षक हो, इंजीनियर्स हो, डॉक्टर्स हो, किसी भी फील्ड में आप हो, अपने कर्म में कुशलता ले आइए तो फिर सक्सेस का रेट बढ़ जाता है। इसके अलावा हठ योग है, ज्ञान योग है, मंत्र योग है, भक्ति योग है, फिर 47-48 तरह के योग हैं। उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये हम समझते हैं कि आइडियल लाइफ स्टाइल, योग के संबंध में आदर्श जीवन शैली क्या है। तो योग ये कहता है कि आदर्श जीवन शैली का मतलब हो गया, आइडियल लाइफ स्टाइल का मतलब ये हो गया कि आपका आचार, विचार और व्यवहार ठीक है या नहीं। ये जो आइडियल लाइफ स्टाइल के, आदर्श जीवन शैली के भारतीय परंपरा में विशेषकर योग में ये 3 पिलर्स हैं। यदि आपका आचार, विचार, व्यवहार अच्छा है और साथ ही साथ आप हेल्दी हैं। हेल्दी होने का मतलब ये नहीं होता कि आपको कोई बीमारी नहीं है। योग में कई तरह के शरीर हैं, तो यहाँ पे 2 शरीर की बात करूँगा। ये तो जो स्थूल शरीर आप देख रहे हो, ग्रॉस बॉडी, इसके अलावा सूक्ष्म शरीर है। तो इन दोनों स्तर पे आपको कोई बीमारी नहीं है। बाकी आपका आचरण अच्छा है, आपका विचार अच्छा है, आपका विहार, आपका लिविंग अच्छी है,
तो आप आइडियल लाइफ स्टाइल को उपलब्ध है। यहाँ पे क्या होता है, आइडियल लाइफ स्टाइल का मतलब लोग समझते हैं कि बहुत बड़े घर में हम रह रहे हैं, या बहुत बड़ी गाड़ी से हम चल रहे हैं, या बहुत अच्छे हम कपड़े पहन रहे हैं, या बहुत ही बड़े लोगों में मेरा बैठना उठना है। ये आइडियल स्टाइल नहीं है। इसका तो दुष्परिणाम ये है इस जीवन दर्शन का कि घर में हर एक चीज़ सेट है, टीवी सेट, सोफ़ा सेट, डिनर सेट, फलाना सेट, ढेकाना सेट, मगर उसमें रहने वाले लोग ही अपसेट हैं। तो फिर ऐसी लाइफ स्टाइल का मतलब है क्या? तो इसलिए आचार विचार और व्यवहार और आइडियल लाइफ स्टाइल कोई बाहर की वस्तु नहीं है। योग ये कहता है आपके अंदर की वस्तु है। और फिर उसके लिए फिर अलग अलग प्रैक्टिस का अभ्यास करने की बात की गई है। अगला फिर योग से किस तरह से हम आइडियल लाइफ स्टाइल को उपलब्ध हो सकते हैं, या आइडियल लाइफ स्टाइल योग के माध्यम से कैसे ला सकते हैं। तो इसके लिए देखिए महर्षि पतंजलि ये कहते हैं कि अष्टांग योग की साधना करें। सर सर थोड़ा सा अटेंशन चाहेंगे सर प्लीज़। तो यहाँ पे कहा गया है कि अष्टांग योग की साधना करिए। यहाँ साधना का मतलब ये नहीं है कि किसी विशेष प्रकार का वस्त्र पहन लीजिए, बाल बढ़ा लीजिए और इस कलर का कपड़े पहन लीजिए। यहाँ साधना से मतलब आप किसी भी तरह का, सर जैसे पहने हैं, सर जैसे पहने, मैं जैसा पहना हूँ, किसी भी तरह का वस्त्र पहनिए, मगर यहाँ अभ्यास का मतलब है। वहाँ बताया गया यम नियम। यम का मतलब होता है सोशल कंडक्ट और नियम का मतलब होता है इंडिविजुअल कंडक्ट। यम नियम फिर आसन। आसन जो आप देख रहे हो, जो पोस्चर मैम ने बताया तमाम तरह का, उसके बाद प्राणायाम, उसके बाद प्रत्याहार, फिर उसके बाद धारणा, उसके बाद समाधि। हम क्या समझते हैं, योग का मतलब समझते हैं कि जो आसन, जो बॉडी पोस्चर है, हम लोग उसी को योग समझते हैं। अरे भाई ये आसन योग नहीं है, योगासन योग नहीं है, प्राणायाम योग नहीं है। ये योग के ढेर सारे ऑर्गन्स हैं, उसका एक छोटा सा हिस्सा है। देखिए योग का जो अभ्यास है, विशेषकर आइडियल लाइफ स्टाइल के रेफरेंस में, तो योग का जो अभ्यास है वो 75% क्या 85%, 85% मेंटल प्रैक्टिस है योग का अभ्यास, और 15% ये फिजिकल। जो लोग हम ब्रीथ वाला प्राणायाम करते हैं या अलग अलग पोस्चर करते हैं, और आप समझो कि टीवी देख के आप आसन कर रहे हो या प्राणायाम कर रहे हो, आपको वो सब लाभ नहीं मिल रहे हैं जो उससे ओरिजिनल लाभ आपको मिलना चाहिए। देखिए आसन करने के लिए सबसे पहले आहार आपका अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे सात्विक आहार की बात होती है। रात में आदमी मुर्गा खाया और सुबह योगा ट्यूटर आ रहा है, उनको योग सिखा रहा है, आसन सिखा रहा है, कहाँ फायदा करने वाला है? करने वाला है क्या? देखिए एग्जाम्पल, ये ग्लास है, ठीक है ना, इसके नीचे छेद हो, आपसे मैं बोलूं पानी भरो, रुकेगा क्या? तो उसी तरह से जो अंधाधुंध हम लोग आसनों का प्रयोग कर रहे हैं, प्राणायामों का प्रयोग कर रहे हैं, यदि हमारे अंदर कैपेसिटी नहीं है, पात्रता नहीं है, तो उसका कोई फायदा होने वाला नहीं। जैसे गिलास में पानी डालिए, नीचे छेद है तो नीचे ही चला जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए हर एक सब्जेक्ट का, हर एक विषय का एक अपना नियम होता है, तो उस नियम को पहले अडॉप्ट करने की ज़रूरत होती है। हम अपने अंदर एक पात्रता डेवलप कर लें, अपने अंदर एक योग्यता डेवलप कर लें, उसके बाद उस रास्ते पे चलें, तो फिर उसका लाभ होगा। हमने क्या समझ लिया कि इस टांग को यहाँ पे फंसाना योग है, या यहाँ से लेके यहाँ छोड़ना योग है। अरे भाई ये तो कोई भी कर सकता है, कर सकता है कि नहीं? तो अच्छी आदर्श जीवन शैली को उपलब्ध होना है, तो जो योग के अभ्यास के जो नियम हैं, जो हठ योग में वर्णन है, महर्षि पतंजलि ने अपने पातंजलि योग सूत्र में जो वर्णन किया है, या घेरंड संहिता में जो वर्णन किया गया है, उसको अपने संदर्भ में सामने रख के करें, तो बढ़िया हम स्वास्थ्य को उपलब्ध होने की स्थिति में आ सकते हैं। ये नहीं कह सकते कि उससे स्वास्थ्य ही उपलब्ध हो जाएगा।
अगला मेरा कहना था, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, सकारात्मक विचार होना चाहिए। विशेषकर युवाओं के संदर्भ में कहना चाहूँगा। मैं कह रहा हूँ उपदेश देना आसान है, मगर उसको अडॉप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। आजकल क्या है कि मान लो आप ही के साथ में कोई पढ़ रहा है, आपसे बहुत ही कमज़ोर है, मार्क्स उसके कम आते हैं। युवा लोग सुने ध्यान से। फिर क्या हुआ, आप दोनों ने साथ में कंपटीशन की तैयारी करी और वो जॉब जो आपको मिलनी थी वो आपसे जो कमज़ोर है पढ़ने में उसको मिल गई। तो आदमी क्या होता है, फिर निराशा आ जाती है, हताशा आ जाती है। तो यहाँ पे जो योग्य व्यक्ति है उसको हताशा, निराशा और डिप्रेशन में नहीं, मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, जीवन में तमाम तरह के संघर्ष आते हैं, उसको हताशा या निराशा में नहीं आना चाहिए। अपने गोल को प्राप्त करने के लिए फिर से नया प्रयत्न करना चाहिए। देखिए जीवन जीना आसान नहीं है। देखिए जीना है तो 100 बार मरना पड़ेगा। और यदि आप योग के अभ्यासी हैं तो उस कठिन समय को या उस समस्या को मैं समझता हूँ कि अच्छे से डील कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको 4 लाइनें सुना दूँ। आप लोग मैं समझता हूँ काफ़ी समय से सुन रहे हैं। इसके लिए क्या है, सफल होना है तो कदम भारी रख, सफल होना है तो कदम भारी रख, मिलेंगी कदम कदम पे मुश्किलें ये तय हैं। विशेषकर युवा वर्ग, मिलेंगी कदम कदम पे मुश्किलें ये तय हैं। घर से बाहर निकल, तूफानों से यारी रख। तो इस संदर्भ में एक युवा जोश के साथ और सकारात्मक विचार के साथ आप जीवन को जीने की कोशिश करेंगे तो सफलता आएगी, और सफलता आएगी तो संतुष्टि आती है, और संतुष्टि आएगी तो जीवन में आनंद आएगा, और आनंद आएगा तो जीवन का विस्तार होगा। क्या मेरा समय ओवर हो गया? अच्छा ठीक है। इसके अलावा अच्छे से हेल्दी होने के लिए फिर आसनों का अभ्यास है, प्राणायामों का अभ्यास है, मेडिटेशन का अभ्यास है, षटकर्मों का अभ्यास है। तो इस प्रकार से योग का जो फिजिकल अभ्यास है जिसमें आसन आता है, प्राणायाम आता है, बंध आता है, इसका अभ्यास करके और उसकी जो मेडिटेटिव प्रैक्टिस है, मेडिटेशन या धारणा का अभ्यास करके हम अपने जीवन में शरीर, मन और आत्मा, बॉडी, माइंड और सोल, इसमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन स्थापित कर सकते हैं। और योग कहता है कि जिसके जीवन में शरीर, मन और आत्मा में सामंजस्यपूर्ण स्थिति है वही स्वस्थ स्वास्थ्य को उपलब्ध है, वही आदर्श जीवन शैली को उपलब्ध है। एक बार पुनः प्रोफेसर नरसिंह वर्मा सर का और आप सभी आयोजकों का हृदय से धन्यवाद देते हुए अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। Thank you, sir, for sharing your unique perspective on yoga. So the great thing about Ayurveda is that its treatment always yield us side benefits, not side effects. So here we move forward toward the next presentation, that is Ayurveda. Is it underutilized or overhyped? So I invite Dr. Yogesh Chipa sir, PMS MD Ayurveda, Nadi Vaidya, Senior Consultant, Shri Shri Cancer Care Department at Shri Shri College of Ayurvedic Science. And his area of interest are Panchakarma, Ayurvedic formulation, cancer and Ayurveda, and chronic disorders. So here I invite sir to deliver your speech. गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. So thank you so much for invitation. So KGMU and the Ministry of Youth Affairs and Department of Youth Affairs for inviting me on this dais. So my topic is Ayurveda underutilized or overhyped. So I'll go through the slides.
सो ये कैसे करते हैं इसको? सो व्हाट इज आयुर्वेदा? आयुर्वेद के बारे में क्या कहा गया है और हम लोग क्या जानते हैं इसके बारे में, ठीक है? सो आयुर्वेद के बारे में बहुत सिंपल बताया गया है. सो द फर्स्ट इज आयुषो वेदः आयुर्वेदः. माने क्या, आयुर्वेद किसको कहते हैं? तो जो हमारे जीवन शैली के बारे में बताया है, और इसे ही हम कहते हैं द साइंस ऑफ लाइफ. हम आपसे पूछना चाहते हैं कि हम लोग नए कार खरीदे, नए फ़ोन खरीदे, तो हमारे साथ एक मैनुअल आता है, तो उसको कैसे इस्तेमाल करना है. क्या हमने कभी सोचा, क्या हम जब पैदा हुए उसका मैनुअल कहाँ था कि अगले 10 साल कैसे होंगे, अगले 20 साल कहाँ से होंगे, हमारे बुढ़ापे का क्या होगा? तो इसका कोई मैनुअल नहीं था. हम तो ऐसे ही आगे बढ़ रहे हैं और जब होता है तब उसके बाद ज़िंदगी ख़त्म. तो आयुर्वेद ऐसी शैली है जिसके बारे मतलब हमारे शरीर के बारे में दिया हुआ एक मैनुअल है कि आपकी बाल्यावस्था कैसी होगी, मध्यमावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था के बारे में. तो कहाँ से आयुर्वेद आया है? तो ये है ओरिजिन ऑफ आयुर्वेदा. सो ब्रह्म स्मृतमा आयुषो वेद कहते हैं इसको. जैसे कि ब्रह्मा जी ने याद किया, फिर उसके बाद ये यहाँ तक पहुँच गया, जैसे अत्रि ऋषि और इसके यहाँ पे. तो इसके बारे में डिटेल दिया है. तो आयुर्वेद एक ऐसी पद्धति है चिकित्सा जिसमें अलग अलग विभाग है. सो इट इज डिवाइडेड इनटू द 8 पार्ट्स, दैट इज कॉल्ड अष्टांग आयुर्वेद. सो कौन कौन से है? काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग, शल्य, द्रंष्टा, जरा और वृषा. माने काय माने इंटरनल मेडिसिन्स, जो भी हम जो देखते हैं अभी दवाइयों के बारे में, फॉर्मुलेशन, डिसीज के बारे में उसका. सर्जरी माने शल्य चिकित्सा कैसे करी जाती है. शालाक्य माने ENT और उसके बारे में कहा गया है. तो मेंटल डिसऑर्डर्स बच्चों के इसमें, और अभी जीरियाट्रिक्स करके है तो उसके बारे में क्या कहता है, और उसके साथ साथ एफ्रोडिजियाक थेरेपी. तो इस हमारी जीवन शैली की रसायन और उसमें कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में भी आयुर्वेद में कहा गया है. तो कौन कौन से स्क्रिप्चर्स है यूजुअली हम इस्तेमाल करते हैं हमारी आयुर्वेदिक स्टडीज़ में? जैसे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय, शारंगधर, भाव प्रकाश और माधव निदान. तो इनके बारे में हाँ हम लोग पढ़ के और उसके हिसाब से हमारी चिकित्सा पद्धति का इस्तेमाल करते हैं. तो उससे पहले जाने कि आयुर्वेद का लक्ष्य क्या था, आयुर्वेद कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं. तो इसका बहुत सुंदर संस्कृत में श्लोक है जिसे कहते हैं स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशनम च. माने जो व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है उसकी स्वास्थ्य की कैसी हम रक्षा करें, और कोई डिसीज्ड पर्सन हो तो उसकी रोग को कैसे मिटाए, इसके बारे में आयुर्वेद में कहा गया है. और उससे पहले हम लोग जानना चाहते हैं कि स्वस्थ क्या है, माने व्हाट इज एग्जैक्टली हेल्थ. तो जैसे मैडम ने पहले अपने स्लाइड प्रेजेंटेशन में WHO का डेफिनेशन बताया कि हेल्दी स्टेट क्या है. अभी देखो हमारे आयुर्वेद में क्या बोला है. समदोषा, समअग्नि, समधातु, मलक्रिया, प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मनः स्वस्थ इत्य विधीयते. माने हमारे शरीर के जो दोष है, जिसे हम वात पित्त कफ कहते हैं, धातु है, अग्नि है, इसके साथ साथ यदि हमारी स्टेट ऑफ माइंड, हमारी मन की ये और इंद्रिय हमारे वश में हो और हमारी आत्मा प्रसन्न हो, उस व्यक्ति को स्वस्थ कहा जाता है. तो ये दिया है आयुर्वेद में हजारों साल पहले. तो अभी इसको भी देखो कैसा हम लोग कोइंसिडेंस कह सकते हैं, अभी इस डेफिनेशन को भी ऐसे WHO ने कहा है.
तो आयुर्वेद में कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स है जो हम इस्तेमाल करते हैं चिकित्सा के तौर पे। तो जैसे कि पंच महाभूत है, त्रिदोष है, सप्त धातु है, त्रिमल है और अग्नि है। तो इन सारों के बारे में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी कोई आयुर्वेद विशेषज्ञ हो, आपकी चिकित्सा कैसे करता है, तो सबसे पहले आपकी वो प्रकृति देखते हैं। प्रकृति माने आपकी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे वात पित्त कफ में कौन सी बनी है और उसके हिसाब से आपकी इम्बैलेंस क्या है, माने आपका शरीर में कौन सा ये वात पित्त कफ दोष के हिसाब से कौन सा इम्बैलेंस या विकृत है, उसके हिसाब से वो चिकित्सा देते हैं। तो ये है प्रकृति और विकृत। इसके विशेष गुण भी बहुत ज़्यादा है, हम उसके बारे में कहीं और चर्चा करते हैं। और कौन कौन से ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ आयुर्वेद में इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे कि दव्यवापाश्रय है और उसके साथ साथ सत्वावजय है और युक्ति व्यापाश्रय। इसमें क्या है, जो भी आयुर्वेद वैद्य है वो आपकी पूरे चिकित्सा करके कौन सा ट्रीटमेंट आपके लिए उचित हो उसके बारे में बताया जाता है। जैसे कि शोधन चिकित्सा और शमन चिकित्सा कहते हैं। शोधन माने कि जैसे पंचकर्म चिकित्सा है, पूरे बॉडी का डिटॉक्स हो जाता है। शमन माने कि जो इंटरनल मेडिसिन है तो उसके बारे में हम आपको दिए जाते हैं। उसके साथ साथ कहीं पे शल्य चिकित्सा की ज़रूरत हो तो शल्य चिकित्सा के बारे में कहा जाता है आपको। इसके साथ साथ मंत्र मणि होमा के बारे में, जो आयुर्वेद पूरे, इसीलिए आयुर्वेद को कहते हैं होलिस्टिक अप्रोच। माने क्या कि ये हमारे साउंड वाइब्रेशन का शरीर के ऊपर कहीं ना कहीं असर होता है, इसलिए मंत्रों का उच्चारण भी कहा गया है आयुर्वेद में कहीं कहीं डिसीज में करना। तो मैं तो ये आप ही लोगों पे छोड़ना चाहता हूँ कि हम तो बिना जाने बिना कुछ किए बोलते हैं कि भाई आयुर्वेदा तो बहुत ज़्यादा काढ़े बनाओ, उसके पियो, तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी आते हैं बाद में। और कभी कभार पूरा तरीके से ना पढ़ने के बाद कोई आपको बोल देता है कि नहीं ये हल्दी खाओ, हल्दी डेली शरीर के लिए अच्छा होता है, लहसुन के कुछ पीसेस खाओ, आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक रहता है। हम लोग बिना किसी विशेषज्ञ को मिले और उसके बारे में जाने ये इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, यदि हमारी संस्कृति और हमारी विरासत और आयुर्वेद को बचाना चाहते हो तो जो भी आयुर्वेद डॉक्टर है, जो शुद्ध आयुर्वेद चिकित्सा की प्रैक्टिस करते हैं, आप उनको प्रोत्साहन करें कि वो वही करें। क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हम देखते हैं कि शुद्ध आयुर्वेदा चिकित्सा मिलने भी बहुत कम मात्रा में प्रैक्टिस करते। तो यदि ये आप करेंगे तो आयुर्वेद के अंदर मतलब आपके बारे में भी, आपके जीवन शैली के इसमें भी आयुर्वेद चिकित्सा की रुचि उत्पन्न होगी। इसके साथ साथ आयुर्वेद हम डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल क्यों और कैसे कर सकते हैं इसके बारे में बोलता हूँ। जैसे कि सुबह हमारे सहगल सर कह रहे थे कि सुबह उठना बहुत ज़रूरी है, तो आयुर्वेद में इसको दिनचर्या के रूप में कहा गया। जैसे ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठे, तो इसका तो बेसिक आयुर्वेद से ही चला है कि आप ब्रह्म मुहूर्त पे उठोगे, उसके बाद आपकी जो भी डे टू डे एक्टिविटी आप प्लान करोगे उसके हिसाब से आपको उसका पूरे शरीर का फायदा होता है। इसे कहते हैं दिनचर्या। फिर आती है ऋतुचर्या, जैसे ऋतु के हिसाब से आपका आहार विहार कैसा हो उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद आता है सद्वृत्त, माने आपका आचार कैसा हो और आपका विचार कैसा हो। यदि आप इसको पूरे तरह से जोड़ दे तो आयुर्वेद एक ऐसी शास्त्र चिकित्सा है जो आपको पूरे तरह से एक संपूर्ण मनुष्य के रूप में हेल्दी जीवन माने स्वास्थ्य जीने की शैली में पूरी तरह से मदद कर देता है। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप पहले डिसीज हो जाओ उसके बाद आयुर्वेद के पास आ जाओ, या ऐसे कुछ नहीं है। यदि आप खुद में आप स्वस्थ रहना चाहते हो तो इसके बारे में भी आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। और आयुर्वेद हम हमारी दैनंदिन जीवन शैली में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। Thank you, sir, for presenting this paramount and ingenious presentation. Now this text is open for question and answer. So if you would like to pose any question, and my request to you that we have 30 minutes to conclude this session. So just you frame your question. It should not be too long. It should be meaningful so that they answer it quickly, okay?
Good evening, everyone present over here. I am Gaurav from Maharajganj. Sir, my question is that सबसे पहले तो इस बात की बधाई कि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां आयुष पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी क्रांति ला रहा है. इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई. लेकिन सर, मेरा सवाल ये है कि जहां चरक और सुश्रुत से हम शुरू किए थे, जहां पूरे विश्व को हमने इंडियन मेडिकल सिस्टम से प्रभावित किया था, लेकिन सर फिर बीच में ऐसा क्या हुआ, वो कौन सा दौर आ गया कि सर जो वेस्टर्न मेडिकल सिस्टम है, जिसको एलोपैथ कहा जाता है, उसको वर्ल्ड लेवल पे सर आयुष या फिर इंडियन मेडिकल सिस्टम के ऊपर ज़्यादा प्रायोरिटी मिली और ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिला. एक छोटा सा क्वेश्चन सर इसी के साथ मैं और ऐड करना चाहता हूँ, खास करके सर आप और मैम आपके इस प्रेजेंटेशन से आपने कहा कि किसी भी तरह का कोई भी आप लोग प्रेस्क्रिप्शन ना लें. तो इसके लिए सर मैं ये कहना चाहूँगा, जिस तरह से पीएचसीज को हम मजबूत कर रहे हैं बाकी एलोपैथ की सुविधा देने के लिए, सर पीएचसीज के लेवल पे अभी भी हम आयुष जैसे संस्थाओं को प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं. और जहां इंडियन मेडिकल सिस्टम को इंट्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस की कमी है, जिसकी वजह से लोग अफोर्डेबिलिटी की, एक्सेसिबिलिटी की और अवेलेबिलिटी की समस्या का सामना करते हैं और फिर मजबूरन एक पूरे वर्ल्ड के बहुत फेमस बट अनऑथेंटिक डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, डॉक्टर I यूट्यूब. request you kindly keep it short, please. तो सर उसके लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं सर? तो पहला सवाल आपने जो पूछा था कि बीच में जहाँ पे 300-400 साल पहले कहाँ पे हमारे आयुष मतलब आयुर्वेद चिकित्सा गई, तो आपको तो पता है यहाँ पे मतलब ब्रिटिशर्स आए और उसके बाद पूरी सिस्टम चेंज हो गई, तो वहीं से हम लोग थोड़ा सा पीछे हट गए. और उससे पहले हमारे यहाँ पे भारत में गुरुकुल पद्धति होती थी, जिससे अपना गुरु जो भी है हमारे शिष्य को पढ़ाते थे और उसमें आयुर्वेद के भी बारे में बढ़ाते थे. इसलिए आपको पता होगा कि वैद्य लोग बहुत ज़्यादा फेमस थे, जैसे कि नाड़ी पकड़ के वो लोग अपनी चिकित्सा के बारे में बोलते थे. ओवर द पीरियड ये क्या हुआ, उन लोगों को मतलब धीरे धीरे मेन स्ट्रीम से हटा के अपनी जो पॉलिसी उन्होंने हमारे ऊपर लाद दी और उसके हम उनके भरोसे पे रहते गए और हम लोग थोड़ा थोड़ा पीछे हो गए. एक्चुअली ये जो कोविड हुआ उसके बाद से आयुर्वेद को थोड़ा बहुत ज़्यादा ये होगा कि लोगों को पता चला कि नहीं, हमारा सिस्टम ऑफ मेडिसिन भी कुछ तो काम कर रहा है. हालांकि अभी बहुत ज़्यादा प्रयास हो रहे हैं पिछले 10 साल में कि आयुर्वेद में रिसर्च आ रही है, उसमें और भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड SOPs आ रही है, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर्स हो रही है, और फार्माकोलॉजी जैसे कि कौन से ड्रग कब इस्तेमाल करें और उसकी उचित डोज क्या हो, इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा संशोधन हो रहा है. तो मैं चाहता हूँ कि आने वाला जो दौर है डेफिनेटली आयुर्वेद के लिए और भी अच्छा रहेगा. आपके सवाल के लिए धन्यवाद. मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर एलोपैथिक मेडिसिन्स ले रहे हैं तो बहुत सारे ऐप्स हैं जहाँ पे हम ड्रग इंटरैक्शंस देख सकते हैं. आजकल बहुत सारे मेडिसिन्स लेते हैं लोग, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोग हैं जिनको डेंजरस मेडिसिन्स भी लेने पड़ते हैं एलोपैथ से. तो उनका असर क्या होता है और उनका इंटरैक्शन कैसा होता है, ये पता होना चाहिए. और काफ़ी बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स बताते नहीं हैं, जैसे टर्मरिक टैबलेट्स ले रहे हों या कोई और ले रहे हों, तो उनको लगता नहीं है कि ये कोई दवा है. तो ये इंटरैक्शंस पता होने के लिए, इसीलिए मैंने वो बात कही थी. एंड रिसर्च आ रहा है भी बहुत ज़्यादा, आयुर्वेद में भी आ रहा है. एम्स से आया, आई थिंक 2015 में उन्होंने अर्जुन पाउडर या किसी का रिसर्च किया था जिसमें कार्डियक मेडिकेशंस के साथ भी ड्रग इंटरैक्शंस देखे. तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये बहुत काम बाकी है अभी इस विषय में. तो हाँ, आप जैसे यूथ, यू शुड टेक इट अप बिकॉज वी कैन नॉट थ्रो द बेबी आउट विद द बैथ वाटर. माने जो अच्छी चीज़ें हैं उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते. So we definitely want to use the benefits and adjunctive medicine. So अगर
एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हों तो उसके साथ जो इसकी भी बेनिफिट्स हों, बिल्कुल यूज़ करना चाहिए उनको। थैंक यू। हेलो सर, आई एम अनुजा यादव और मेरा क्वेश्चन है एजे सर से। सर, जैसा मैम ने बताया कि हमारे हेल्थ के लिए 3 कंपोनेंट इम्पॉर्टेंट है, मेंटल, फिजिकल एंड सोशल। तो सर, एज वी नो दैट यूनाइटेड नेशन ने WHO को एक स्पिरिचुअल कंपोनेंट मेंशन करने को कहा, and Brahma Kumari gives the first priority of spiritual component. So, sir, can we say that spiritual component too much suitable for us? देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, आपको धन्यवाद। थैंक यू सर। और स्पिरिचुअल होना लाइफ का बेस है, आधार है। जो स्पिरिचुअल नहीं है, मतलब आध्यात्मिक नहीं है, तो समझो आधा अधूरा लाइफ जी रहा है। और स्पिरिचुअल का मतलब समझने की ज़रूरत यह है कि रोज़ मंदिर जाना स्पिरिचुअल होना नहीं है, या रोज़ भगवती जागरण कराना स्पिरिचुअल नहीं है। स्पिरिचुअल होने का मतलब यह है कि हम अपने लाइफ के साथ सत्य को कितना जी रहे हैं, हम अहिंसा का कितना पालन करते हैं। दूसरा, डेडिकेशन हमारा किस लेवल का है। सबसे पहले लोग रोज मंदिर जाते हैं मगर माँ बाप की सेवा नहीं करते, तो हमारे अंदर मानवीय गुण कितने हैं, सत्य कितना है, अहिंसा कितना है, अस्तेय कितना है, दया कितना है, सहिष्णुता कितना है, इम्पैथी कितनी है, सिंपैथी कितनी है, ये सारे गुण हमारे अंदर हैं, तो हम स्पिरिचुअल हैं, मनुष्य हैं। इसलिए व्यक्ति को स्पिरिचुअल होना जरूरी ही नहीं, अनिवार्य है। अन्यथा योग ये कहता है कि आप अधूरा जीवन जी रहे हैं। इसलिए स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए कोई देखे टॉनिक तो बनी नहीं, कोई एक्सरे या कोई मशीन या कोई इंजेक्शन तो बना नहीं। तो इसके लिए क्या है कि आपके शरीर में बहुत ही बृहद तरह का चेतना का भंडार है, इसमें चक्रों का स्थान है। तो योग के अंदर जो धारणा का अभ्यास है और मेडिटेशन का अभ्यास है, इनका अभ्यास करें, मगर पहले योग्यता डेवलप कर लें, तो स्पिरिचुअल आदमी बेहतर ढंग से होता जाएगा। और जो व्यक्ति स्पिरिचुअल है वही अपने जीवन में अपने जीवन के उच्चतम मापदंड को स्थापित कर सकता है। धन्यवाद। थैंक यू सर। प्रणाम सर, मेरा नाम अंकुर मिश्रा है और मैं कुशीनगर से हूँ। मेरा क्वेश्चन मैम से है। मैम, 2019 में एक रिपोर्ट आती है कि भारत में एलोपैथ की दवाइयाँ लेने वाले लगभग 7.5% लोग एलोपैथ की दवा लेते हैं और उनसे कोई असर नहीं होता है, उनके अंदर किसी न किसी तरीके की शारीरिक बीमारी है, बनी हुई है। तो क्या मैम हम एलोपैथ को छोड़ करके पूरी तरीके से योगा और आयुर्वेद पर डिपेंड हो सकते हैं? तो ये अगर ये NIH की जो साइट्स थे उनमें भी एक स्टेटमेंट है कि अगर हार्ट अटैक हो रहा है, किसी को स्ट्रोक हो रहा है, तो एलोपैथिक मेडिसिन उन सिचुएशंस में तो लेना ही पड़ेगा। असर क्यों नहीं होता, क्या डोज ठीक ले रहे हैं, क्या मेडिकेशंस ठीक ले रहे हैं, वो बहुत सारी चीज़ें हैं। असर क्यों किसी को किसी मेडिसिन से नहीं होता, ये सब देखना पड़ता है, हिस्ट्री लेनी पड़ती है। और पेशेंट्स काफ़ी बार सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ भी होते हैं। सो ये जो हेल्थ होता है, उनके पास एक्सेस है, दवा लेने के लिए पैसे हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिससे असर नहीं पड़ता किसी पे, और ये हमको पता भी नहीं होता है। तो वो सब पता करना पहले इम्पॉर्टेंट है। और फिर इसके बाद योगा और आयुर्वेद अगर उस कंडीशन के लिए कोई दवा है, योगा तो डेफिनेटली विथ एलोपैथी एडजंक्टिव थेरेपी बिल्कुल काम करता है। जैसे COPD है, आज़मा है किसी को, और अगर योगा करें तो ज़्यादा चल सकते हैं, वो ये डेटा है। सांस ईजिली ले सकते हैं, तो लंग फंक्शंस बेटर होते हैं उनके।
तो डेफिनेटली adjunctive थेरेपी कर सकते हैं उसके साथ। बट आयुर्वेद के लिए वो इंटरैक्शंस अगर पता हों, अगर कोई मेडिकेशन दे रहे हैं, अगर किसी को क्लॉट है पैर में या लंग्स में क्लॉट है, दे कैन बी डेंजरस। अगर क्लॉट के साथ जो मेडिसिन ले रहे हैं और इंटरैक्शन का पता ना चले तो डैमेज ज़्यादा हो सकता है। मैम, सतयुग से लेकर के अभी यूरोपियन एरा आने से पहले जब हमारे पास ऑपरेशन थिएटर नहीं हुआ करते थे, आधुनिकताएं नहीं थी, तो भी लोग मैम योगा और एलोपैथ से ठीक हुआ करते थे मैम। तो उसके कंडीशन में अगर हम देखें तो उस हिसाब से तो हम डिपेंड हो सकते हैं अगर। डेफिनेटली और ये सब रिसर्च की और ज़रूरत है, और आप जैसे नौजवान ज़रूर इसको लेके और रिसर्च करें। ये बहुत फ़ायदा हो सकता है पूरी दुनिया का। थैंक यू मैम। सर, मेरा सवाल डॉक्टर योगेश्वर सर से है। सर, ऐसा देखा जाता है कि बच्चे जो डॉक्टर हमारे हैं आयुर्वेदा से पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब बात आती है ग्राउंड लेवल पर प्रैक्टिस करने की, तो सर वो एलोपैथ या दूसरी तरफ स्विच कर जाते हैं। तो सर इसमें आप क्या देखते हैं, ये गवर्नेंस फेलियर है या फिर हमारे जो बच्चे पढ़ाई करके आ रहे हैं उनकी कुछ नॉलेज में कमी रहती है? सर आप इसको किस तरीके देखते हैं? तो मैं हम इसको कैसे देखते हैं, इसके दो तरीके से, दो पहलू मैं कह सकता हूँ। पहला तो है आयुर्वेद प्रैक्टिस जो करनी उसमें रुचि होना। देखो बहुत बार क्या होता है कि मुझे यदि MBBS सीट नहीं मिली तो मैं आयुर्वेद करूँगा क्योंकि कुछ तो है, तो फिर बाद में वही प्रैक्टिस करूँगा। उसकी जगह आप इस भावना से जाओगे कि मुझे आयुर्वेद प्रैक्टिस करनी है और मैं जो पढ़ाई किया हूँ आयुर्वेद की और मैं उसी को प्रैक्टिस करूँगा, तो आधा जो हमारी ये जो समस्या है वो वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि हम लोग हमेशा शॉर्टकट में चले जाते हैं, कुछ जल्दी इलाज करें और उसका उपाय मिले उसके बाद देखें, तो ये थोड़ा लॉन्ग टर्म हमको अच्छा नहीं होगा। और जहाँ तक भारत में हमारे प्रैक्टिशनर से 4 लाख से भी ज़्यादा आयुर्वेद वैद्य हैं, यदि उन्होंने भी ये चिकित्सा प्रणाली चालू की, जैसे कि PHCs में हो, अभी गवर्नमेंट भी लाने वाली है उसमें, और खुद जो वैद्य बने हैं जो आयुर्वेद की शिक्षा पढ़े हैं, यदि उन्होंने भी ये रुचि लाई कि हाँ मैं आयुर्वेद प्रैक्टिस करूँगा, तो उसमें से भी ये बहुत ज़्यादा अंतर मिट सकता है। Hello, my name is Kajal Sharma and I am from Varanasi. मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब ओल्ड एज में क्या है कि एक इशू आती है कि हमें जॉइंट पेन्स होते हैं, तो मैम उसका प्रॉब्लम ये आ रहा है कि मैम होम्योपैथी में या इंग्लिश मेडिसिन्स भी यूज़ करिए तो दोनों ही उतने इफ़ेक्टिव नहीं हो रहे हैं, दोनों में वो प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हो रही है। तो मैम क्या हम ये समझ सकते हैं कि योगा करने से ओल्ड एज में, मतलब हम लोग स्टार्टिंग से तो योगा करते नहीं है, तो जब ओल्ड एज में ये प्रॉब्लम आ गई है तो उस टाइम अगर हम ये योगा करना स्टार्ट करें तो क्या ये कम्प्लीटली ठीक हो सकता है प्रॉब्लम? पूरी तरह से तो नहीं, बट फ्लेक्सिबिलिटी में डेफिनेटली प्रभाव आता है। बैलेंस में जो स्टडीज़ पब्लिश किए हुए हैं, 15 स्टडीज़ पब्लिश किए, 11 में से 15 उनने स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दिखाया हुआ है कि असरदार है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस डेफिनेटली, जो घुटनों का आर्थराइटिस है, उसमें डेफिनेटली योगा इज़ वेरी इफ़ेक्टिव। वाटर एरोबिक्स, सो कॉम्बिनेशंस हम काफ़ी देते हैं। और आपने ठीक पहचाना कि जो ओल्डर एज ग्रुप्स हैं उनको साइड इफ़ेक्ट्स भी ज़्यादा होते हैं एलोपैथिक मेडिकेशन से। So definitely, if yoga helps, they should try it, and there's enough data to show that it does. Good evening, ma'am. मैम, जब हम बात योगा की करते हैं
तो निश्चित ही जब स्वास्थ्य की बात करते हैं तो योगा हमेशा से सबसे ऊपर रहा है और आज भी वो सबसे ऊपर है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात आज की युवा पीढ़ी की करें, आज के समय की करें, तो कहीं ना कहीं हमारी युवा पीढ़ी को लगता है कि अगर हम योगा की बात करते हैं तो वो हमारा पिछड़ापन दर्शाता है, और अगर हम जिमिंग की बात करते हैं, अगर हम जिम जाते हैं तो उससे हम मॉडर्नाइजेशन दिखा सकते हैं, अपने आप को जवान दिखा सकते हैं, और आजकल ज्यादा चलन में है। तो मैम आप किस प्रकार से देखती हैं? वहीं पे अगर हम योगा की बात करें तो योगा ने हमें कभी नहीं सिखाया कि हम कोई भी सप्लीमेंट्स लें, कोई भी पाउडर लें या कोई भी मेडिसिन लें। लेकिन वहीं अगर आज हम जिमिंग करते हैं, अगर हम जिम में जाते हैं, तो मैम निश्चित तौर पर ही हमें सप्लीमेंट्स की भी जरूरत है, हमें पाउडर की भी जरूरत है। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो सप्लीमेंट्स और पाउडर ही आगे चलकर एक ड्रग्स बन जाते हैं, एक नशा बन जाते हैं, जिन्हें छोड़ना हमारे लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। तो मैम कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज भी योगा सबसे ऊपर है, लेकिन आज की युवा पीढ़ी जो भ्रमित है, मैम आप उसको किस प्रकार से मार्गदर्शन दिखाना चाहेंगे? बहुत खूब, बहुत बहुत अच्छी बात की है आपने। मुझे भी ऐसे लगता है कि जिम इज़ अ पैकेज डील। अगर जा रहे हो तो ये छोटे छोटे विटामिन्स वगैरह पहुंच जाते हैं घर। तो योगा इनफैक्ट जो आप वेस्टर्न वर्ल्ड में भी देखें, अभी कोविड के बाद मेरा इन्वॉल्वमेंट अभी काफ़ी पेशेंट्स के साथ है जो कोविड के बाद उनको कोविड होता है। 1 में से 5 पेशेंट्स को इंसोम्निया या रात में नींद नहीं आती, और ब्रेन फॉग, याद नहीं रहता उनको क्या कह रहे हैं, सोशल मीडिया की वजह से नहीं, उनको बस याद नहीं रहता। तो इट्स अ रियल प्रॉब्लम। तो माइंडफुलनेस, योगा, ये टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और मैं जब सेशंस अटेंड करती हूँ अपने पेशेंट्स के साथ, काफ़ी लोग अमेरिका से योग निद्रा और ये सारी योगा वाले टर्म्स जो वो कहते हैं, हमको पता है ये हमारे टर्म्स हैं, हमारी हिस्ट्री से आए हैं, हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज से आए हैं ये सब। सो डेफिनेटली हमको गर्व होना चाहिए उस पे, और उसको प्रोपगेट करना चाहिए इन द राइट वे। सो आई एग्री विथ यू। Hello, ma'am. Good afternoon to everyone. My name is Shreya Tripathi, and I'm from Kushinagar. My question is for Vidya, ma'am. So, ma'am, how should I do meditation for more than 30 minutes? Because whenever I try to do meditation, I did not focus and concentration more than 5 minutes. And I go in that thoughts which are going in my life are my problems, like and all issues. So generally I want to ask, how should I do meditation with more focus and concentration? I'm going to defer that also to Dr. Yadav. Mindfulness is something that is being identified. Mindfulness versus yoga, there's one difference. With mindfulness, you also are aware of what is happening and you accept the imperfections. Agar kuch ho raha hai to ho raha hai. It's fine, you accept it. And that seems to help a lot of people, because focus, agar aap फोकस पे अड़े रहें कि मुझे इस पे फोकस करना है, इस पे फोकस करना है, तो काफ़ी बार फोकस नहीं हो पाता है। इफ़ यू आर एक्सेप्टिंग द इम्परफेक्शन, यू गेट द रिजल्ट्स अ लॉट बेटर। डॉक्टर यादव, आप कमेंट करेंगे? देखिए, मैं लिटरेचर की बात करता हूँ कि मेडिटेशन आप कैसे करेंगे। सबसे पहले लोग इस समय क्या करते हैं कि आसन कर लेते हैं, फिर 1-2 प्राणायाम कर लेते हैं, फिर मेडिटेशन करते हैं। तो इस तरह से नहीं करना होता है। मेडिटेशन का मतलब होता है कि प्रत्याहार, महर्षि पतंजलि ने कहा है कि आप बाहर से पहले अंदर आइए। ठीक है मित्रों, मतलब बाहर के झंझावत में जो आपकी उलझने हैं या जो कठिनाइयां हैं, दुश्वारियां हैं, उससे छुटकारा पा के आप अंदर आइए। और पूरी तरह से तो नहीं, मगर कोशिश करिए कि मन पे नियंत्रण आए।
और मन क्या है, बहुत ही चंचल है। जैसे मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मैम है, मैम ने 10,000 रुपये किलो की मिठाई लाई और यहाँ रख दिया, ठीक है, 10,000 रुपये किलो की। तो यहाँ तो बहुत साफ सुथरा है, मगर आप समझो उस पे आके मक्खी पहले बैठेगी, ठीक है। उसके बाद वो राम नरेश हैं ये 5 रुपये किलो वाला बगल में सड़ा आम ला के रख दे, तो मक्खी वो 10,000 रुपये केजी वाली मिठाई छोड़ के उस 5 रुपये वाले सड़े आम पे आके बैठ जाएगी। तो इस तरह का मन की दशा है। तो क्या है कि पूरी तरह से तो हम नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, उसके लिए खूब साधना चाहिए, मगर उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करना चाहिए। और आप ये मान के चलो कि मेडिटेशन, योग का आप साहित्य पढ़ोगे तो मेडिटेशन और ध्यान दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। मेडिटेशन तो मेरिडियन से बना है, इसका मतलब होता है एकाग्रता, किसी एक चीज पे एकाग्रता। और उधर ध्यान क्या कहता है, ध्यान दृश्य धातु से बना है। वो कहता है कि मन पे पहले नियंत्रण ले आइए, फिर बाहर से आप बाह्यमुखी से अंतर्मुखी होइए, तब आप किसी चीज को साधेंगे तो वो सदेगा। तो इसलिए मोटा मोटा कहने का मतलब यह है कि धीरे धीरे मन पे नियंत्रण की विधि सीख के फिर धारणा का अभ्यास पहले आदमी करे। धारणा का मतलब होता है किसी चीज पे कंसंट्रेशन, उसके बाद फिर धीरे धीरे ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। और उससे पहले, मन पे कंट्रोल से पहले आहार की बहुत ही अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। आहार की व्यवस्था मतलब बैलेंस डाइट या जो भी आप पढ़ते हो वो नहीं, सात्विक आहार, जिससे योग में 3 तरह के आहार हैं, राजसिक, सात्विक और तामसिक। तामसिक और राजसिक भोजन करेंगे तो ध्यान करेंगे तो दिक्कत आएगी, इसलिए सात्विक आहार चाहिए जिससे सतो गुणों की वृद्धि होगी। तो आपका मन और तन दोनों ध्यान की तरफ प्रेरित होगा। तो ये 3-4 चीजें हैं, पहले इसको आदमी कर ले फिर ध्यान पे आए। आजकल क्या आदमी समझता है, आंख बंद करके बंद है, और यहाँ मान लो हम यहाँ पे हैं हॉल में, आंख मेरी बंद है और मैं एक ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा, ध्यान मुद्रा मैंने बना ली। आम आदमी समझ रहा है ध्यान कर रहा, मेरा मन मेरे घर पे है, चाहे मेरे यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में है, मैं वहाँ पे हूँ, तन से यहाँ दिख रहा हूँ, तो ये सब ध्यान नहीं है। तो ये सब चीज़ें करके मतलब मन पे नियंत्रण की जरूरत है, ये एक चाबी है ध्यान की। और उसके अब अलग अलग साधन हैं, उसको अपना के फिर ध्यान की तरफ आना चाहिए, क्योंकि ध्यान समाधि से थोड़ी सी पहले की स्थिति है। और ध्यान मतलब उसका एक निश्चित स्थान भी होना चाहिए, और खान पान अच्छा होना चाहिए, विचार अच्छा होना चाहिए, तब ये सब आप करो तो बहुत ही जो मेंटल प्रॉब्लम या स्ट्रेसफुल लाइफ है उससे निजात पाया जा सकता है। शरीर में जो एंगर हार्मोन्स का परसेंटेज बढ़ रहा है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। हैप्पी हार्मोन्स, सेरोटोनिन, डोपामाइन, इस तरह के जो हार्मोन्स हैं उसका सिक्रेशन बढ़िया बैलेंस कर सकते हैं। धन्यवाद। हेलो सर, हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अशफाक अहमद फ्रॉम भदोही। सर मेरा क्वेश्चन आप सभी से है कि जैसे कि आज हम सभी लोग बात तो कर रहे हैं, पर हम लोगों को कैसे अवेयरनेस करें कि स्पोर्ट्स, योग हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज का जो युवा है वो टेक्निक्स में इतना बिजी है कि वो इस सब पर ध्यान नहीं दे रहा है। दवा खाने के लिए वो रेडी है, लेकिन सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक करने के लिए वो रेडी नहीं है। तो हम उनको कैसे अवेयरनेस करें? Okay, I think interesting question because Thank you. yeah, I know because I have my cousins and nieces. What they do is sit on the phone and play mobile games. You know, I think it's so addicting. Yes. No, I think physical games have become very uncommon. Maybe we used to once play football. All those things have become so uncommon. Maybe some of you are now taking up because it's lucrative, lot of money involved. But as such, you know, how to get people active, that's a big problem. So what happened was I spent some time in an island called Aruba in the Caribbean. So Aruba had a major problem of obesity.
80% of the population was obese. So they tried a number of techniques to get people moving, you know. They created kind of walking paths, nice places where people can walk. They put a lot of exercise machines by the side of the beach, you know. So you can exercise in open air. Many of the strength and other things exercises. So that's something they did. Whether they're fully successful, I don't know. Because in modern life, I think we have cars, we have so many things which don't require us to spend any energy. You know, so life has become easier. Video games are very addictive. So maybe I would say maybe the parents can set an example. Because if you as parents are physically active, then that's a very strong stimulus for the children to be physically active. As teachers, we should set good examples. As doctors, we should try and be physically active so that we can tell our patients. Not an easy question, but some of the things we can think about. Thank you. Thanks. गुड इवनिंग मैम, माय नेम इज़ शिवानी, मैं गाज़ियाबाद से हूँ। मैम, भारत को योग गुरु कहा जाता है। मतलब भारत में योगा की शुरुआत हुई, लेकिन फिर भी भारत को मतलब उसे एक्सेप्ट करने में इतना टाइम क्यों लगा? भारत ने 2015 में एक्सेप्ट क्यों किया कि इसको इंटरनेशनल लेवल पे में रिप्रेजेंट करना चाहिए? पहले क्यों नहीं मैम? मतलब दिमाग में तो आना चाहिए था जब हमारे पास ये चीज़ पहले से थी तो। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल सवाल है, बट काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं। मुझे बस यही लगता है कि हमारा ये एटीट्यूड है कि हम वी डोंट बोस्ट, you know, we are nuggets of gold and we just shine. So I think जो propaganda है, जो advertising है, वो काफ़ी और देश हमसे अच्छा करते थे, अभी नहीं, बट काफ़ी अच्छा करते थे, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। अगर ये प्रोग्राम्स अवेलेबल हों, एक्सेस टू दीज प्रोग्राम्स अगर वो अवेलेबल हों बाहर, तो ज़्यादा लोग उसको यूज़ करते हैं। तो बस मुझे ये लगता है कि एडवर्टाइजिंग नहीं हुई थी इसकी। So just to add to that, what happened was we were colonized by the British. When the British first came, they allowed Indian systems of medicine. So all Indians were educated in Ayurveda and all that systems. Then what happened, the British suddenly changed policy. They said these systems of medicine will not be allowed. All Indians will only learn Western medicine at the government level. And then, you know, what happened is we were colonized by the British. Our mindset was influenced. We thought something the British doesn't approve of, that's not something we should look at, you know. And maybe even after 1947, for so many years, you know, our mentality was still colonized by the British. You know, we had a servant mentality. Could be some of the reasons. But this change from the British, not allowing Indian systems of medicine, you know, not sponsoring that from a government level, that was also a major decision. Something we can think about. Thank you. Hello everyone. This is Fatima Nawaz from Saharanpur, Uttar Pradesh, and my question for Dr. P. Ravi Shankar sir. Sir, as you were telling about the GDP, India is currently spending just 2.1% of GDP for the public health care. What do you think is the main bottleneck in this context? Yeah, I think what happened was I was looking at this data. Thank you for the question. It increased steadily, and then in the last 3 or 4 years, it has decreased. So what is happening? I think there are a lot of priorities. Maybe we have to spend a lot on defense due to the environment where we are placed. You know, we are surrounded by different countries. You know, a lot of issues are there, failing states. So maybe a lot of money is going for defense. I hope the government begins to spend more, because what has happened is even in a state like Kerala, which used to lead in healthcare in India, what has happened is even in Kerala, the government has stopped spending, or government is spending much less, and people are spending from their own pockets.
So maybe in Kerala, many people can afford to do that, but still out-of-pocket expenses increased. So I hope India will spend at least 3 or 4% of its GDP on health. Hopefully it will keep on increasing because that's very important. If you do not spend enough on health, of course, a lot of other things will come down. So hopefully maybe once all of you become policy makers, maybe the environment is more peaceful, you might be able to spend more, at least maybe 10% eventually of the GDP. Yeah. But thank you for the question. Sir, my name is Harshvardhan. I am from Saharanpur. First of all, thank you for organizing this amazing meet. Good evening to all of you. And my question to Dr. A.K. sir. We heard from Maharishi Patanjali of Ashtanga Yoga, from Yam, Niyam, Ayam, Pranayam. The last stage is Samadhi. And that is a lot of misconception about Samadhi. So I am asking, what is the real meaning of Samadhi? When we talk about Samadhi, we think that we have to go and सब कुछ छोड़ छाड़ के हमें कहीं पर जाना पड़ेगा उसे अचीव करने के लिए. तो क्या सच में इसका यही अर्थ है या फिर हम आम जीवन में रहकर भी उस स्टेट को अचीव कर सकते हैं? तो ये मेरा आपसे क्वेश्चन है सर. देखिए, इसको 3 लाइन का मैं क्वेश्चन करता हूँ. समाधि का मतलब होता है कि ध्येय और ध्याता, जो ध्यान लगा रहा है या जो समाधि कर रहा है और ध्याता जो उसका लक्ष्य है, दोनों एकाकार हो जाए, वो समाधि है. और समाधि के लिए जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, किसी विशेष प्रकार का वस्त्र पहनने की जरूरत नहीं है, कोई आडंबर करने की जरूरत नहीं. गृहस्थ जीवन में ही ये चीज़ें हम कर सकते हैं, मगर तब कर पाएंगे जब ये चीज़ उस आदमी से सीखेंगे जिसकी समाधि लगती हो. केवल जैसे मैं उपदेश दे रहा हूँ, मेरी न लगती हो, मैं सिखाऊँ तो नहीं लग पाएगी. ठीक है, थैंक यू. हेलो सर, मैं नेतराम राजपूत सर. I'm extremely sorry to interrupt you. We are running on a time crunch and that has to be the last question. I'm sorry, I will not be able to take your question any longer. ओके सर. मेरा क्वेश्चन आयुर्वेद वाले सर से है कि सर, जैसा कि सभी जानते हैं कि आयुर्वेद पे विश्वास करना चाहिए, मैं भी करता हूं. मैंने अपने पिताजी को, जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स गया, वहां पे जो भी गवर्नमेंट डॉक्टर से आयुर्वेद के अस्थमा के पेशेंट है मेरे पिताजी, मैंने उनको दिखाया ओवरऑल जितने भी डॉक्टर्स हैं कानपुर और अपने यहाँ भी, तो सर उन मेडिसिन से उतना जल्दी फायदा नहीं मिलता है और एलोपैथ से मिल जाता है सर. तो इसको मैं किस तरह से देखूँ, क्या डॉक्टर सही नहीं है या मेडिसिन सही नहीं? सर क्या कहना चाहेंगे आप सर? इसमें 2 तरीके हैं. जैसे कि एलोपैथी मेडिसिन में हम लोग जानते हैं कि उसका असर तो होता है तुरंत, तो जैसी कंडीशन होती है उसके हिसाब से आपको उसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा. यहाँ पे ऐसे नहीं कि उसको छोड़ के आयुर्वेद करो, ये नहीं हम बता रहे. हम ये बोल रहे हैं कि आपकी जीवन शैली और आपको आने वाले रोग से कैसे ये पहले इस्तेमाल करो. और फिर भी आपको कोई ऐसी बीमारी हो जिसमें आपको बहुत देर चिकित्सा करने के बाद भी उसमें नहीं मिल रहा है यश, तो आप उसको आयुर्वेद के तौर पे देख के भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो. तो यहाँ पे ऐसे नहीं है कि नहीं आप एलोपैथी इस्तेमाल ना करके आयुर्वेद करें. तो जहाँ जो ज़रूरी है वहाँ आपको करना ही पड़ेगा. ठीक है. Thank you, sir. That was indeed a very intriguing Q&A session and an enriching session. The acknowledgement of the good we are blessed with is the highest form of thought. And gratitude is happiness doubled by wonder. As an expression of our gratitude, we would now like to present our honorable speakers and moderators with mementos. I humbly request our honorable session coordinators, Dr. Narsingh Verma sir and Dr. U.S. Singh sir, to kindly do the honors. Sir, please. Dr. Vidya Sundareshan, ma'am. It was a pleasure to witness your talk, ma'am. Dr. P. Ravishankar, sir. Thank you so much for gracing the occasion, sir.
Dr. A.J. Yadav, sir. Thank you for your esteemed presence, sir. Dr. Yogeshwar, sir. Thank you for honoring us with your presence, sir. Dr. Ritu Tiwari, ma'am, and Dr. Vandana Avasthi, ma'am, for a spectacular moderation of the session. ये कहा गया है कि हर अच्छी चीज़ का अंत होता है, पर यह भी कहा गया है कि every ending is a new beginning. I'm sure after listening to all our guest speakers, our audience must have learned perspective on a lot of things. I know I did. And that the knowledge gained by the ending of today's program shall blossom many new beginnings in your life. Now we shall soon be beginning the summarizing. We shall have the summary of all 3 sessions by moderators. So I request that thank you. सभी स्पीकर्स, मॉडरेटर्स, कोऑर्डिनेटर्स को छोड़ के बाकी सारे डेलीगेट्स तक वापस रीअसेंबल हो जाएं इस हॉल में फॉर कल्चरल प्रोग्राम. थैंक यू.